Hello students, in this video I am explaining to you dominance rule. Dominance rule is a very simple concept and it helps in reducing the size of a game and it reduces to a 2 cross 2 matrix. Now let's see how we will reduce the size of game. Now dominance rule, sometimes what happens is that in a particular situation, in a particular game, it may be possible that the strategies which are available to the player, out of those strategies there may be certain strategy which are always preferable over the other strategies, right? For example, if the player has, let's suppose, three strategies A1, A2, A3, चाहे गेम में दूसरा प्लेयर अपनी किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी चूज़ करे, प्लेयर बी चाहे स्ट्रैटेजी B1 चूज़ करे, B2 चूज़ करे या B3 चूज़ करे, ए जो है तीनों ही सिचुएशंस में किसी एक या दो स्ट्रैटेजी को ज़्यादा प्रेफर करता है एज़ कंपेयर टू द थर्ड स्ट्रैटेजी। तो ऐसी सिचुएशन में कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी क्या है, बाकी की स्ट्रैटेजीज से डोमिनेट हो जाती है। ओके, डोमिनेट मीन्स कि किसी दूसरी स्ट्रैटेजी के पावर में आ जाती है और वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी प्लेयर कभी भी चूज़ नहीं करता। तो ऐसी स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं दैट इट इज़ डोमिनेटिंग स्ट्रैटेजी। और हम जो डोमिनेटेड स्ट्रैटेजी है यानी जो चूज़ नहीं हो रही, उस स्ट्रैटेजी को, उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को गेम से एलिमिनेट कर देते हैं, यानी उसको निकाल देते हैं। तो इस तरह से हम पहले ए की स्ट्रैटेजीज़ देखेंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी ऐसी है जो प्लेयर किसी भी सिचुएशन में चूज़ नहीं कर रहा। इसी तरह से हम फिर बी प्लेयर की स्ट्रैटेजीज़ को स्टडी करेंगे कि बी प्लेयर कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको किसी भी सिचुएशन में वो चूज़ नहीं करता है। तो जो जो स्ट्रैटेजीज़ प्लेयर चूज़ नहीं करते उनको हम गेम से एलिमिनेट करते चले जाते हैं और हमारे पास एक 2 क्रॉस 2 के साइज़ में मैट्रिक्स बच जाता है। फिर जब वो 2 क्रॉस 2 के साइज़ में मैट्रिक्स आ जाएगा, उसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कैसे सॉल्व किया जाता है। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स सॉल्व करने के दो तरीके हैं। आप फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं या फिर इक्वेशन मेथड्स यूज़ कर सकते हैं इक्वेशंस की फॉर्म में, और वैल्यू ऑफ गेम निकाल लेंगे और मिक्स्ड स्ट्रैटेजीज निकल के उसमें आएंगी। नाउ सी, I have considered here as an example here. Now we will see from this example how dominance rule is applied and how this matrix, this is a 3 cross 3 matrix, how we will reduce this 3 cross 3 matrix into the size of 2 cross 2. And after I have shown you the process, then you will solve this question on your own and message me the answers. Your participation in the solving of these small questions which I give in the video will be considered in your internal assessment. So please be responsive, because only few students are messaging me, are always contacting me about the problems that they are facing while solving the questions. But still there are few students who have not come up with any kind of involvement in the management science subject in the videos that I'm sharing. So I hardly get to know whether you are able to understand it or not. So please be responsive, give the try to solve the questions, because unless until you solve it, you won't be able to know about your problems that you are facing. So let's see how dominance rule is applied. Okay, so see this example here. A player, there are two players A and B.
and player A has 3 strategies. Similarly, B player also has 3 strategies, and these are the payoffs: 12, 6, minus 10, minus 8, 7, 6, minus 2, 3 and 2. Now see the values given here and consider that at any given point of time, whether B is choosing B1, whether the player B is choosing B2 or player is choosing B3, A will always choose either A1 or A2. A3 is never chosen by A. How? Let's suppose B is choosing the strategy B1. So what is the most profitable out of these 3 strategies? अगर B जो है B1 स्ट्रैटेजी प्ले करता है तो A के लिए इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पे ऑफ किस में है? ऑब्वियसली इस स्ट्रैटेजी में 12 में, तो A1 चूज़ करेगा वो। अगर प्लेयर B B2 चूज़ करता है तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा फ़ायदा A को किस स्ट्रैटेजी को प्ले करने में होगा? A2, राइट, क्योंकि पॉजिटिव 7 है, बाकी दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो नेगेटिव वैल्यूज़ में A को लॉस होता है। इसी तरह से अगर B B3 प्ले करता है तो A अगेन विल चूज़ A2, राइट। तो चाहे B कोई भी स्ट्रैटेजी प्ले करे, A इज़ नेवर चूजिंग A3. So that means A3 is dominated by these 2 strategies. और you can see कि -10, -6 और 2 से बड़ी वैल्यूज़ हैं बाकी की स्ट्रैटेजीज़ में। लेट्स सपोज A2 जो है, A2 में हायर वैल्यूज़ है, -10 से बड़ी है, -6 से 7 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है। सो दिस स्ट्रैटेजी इज़ डोमिनेटेड बाय A2. तो क्योंकि ये डोमिनेट हो रही है तो ये हमारे गेम से एलिमिनेट हो जाएगी। एलिमिनेट होने के बाद this will be out of the picture. Now we are remaining with only 2 strategies, A1 and A2. अब B के point of view से देखते हैं that if A chooses A1, what is the best strategy for B player? B के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा जब वो B2 प्ले करेगा, क्योंकि उसमें उसको 8 पॉइंट्स का फ़ायदा है। नेगेटिव वैल्यूज़, नेगेटिव पे ऑफ्स इज़ प्रॉफिट फॉर प्लेयर B. तो A1 चूज़ करने पे प्लेयर B जो है B2 स्ट्रैटेजी चूज़ करेगा। अगर प्लेयर A2 स्ट्रैटेजी चूज़ करता है, A प्लेयर A2 स्ट्रैटेजी चूज़ करता है, तो B प्लेयर जो है उसका सबसे कम लॉस किस में है? B3 स्ट्रैटेजी को प्ले करने में। तो क्योंकि A हमेशा इन्हीं 2 स्ट्रैटेजीज़ को चूज़ करेगा, तो B भी हमेशा इन्हीं 2 स्ट्रैटेजीज़ को चूज़ करेगा। तो B1 जो स्ट्रैटेजी है वो कभी भी चूज़ नहीं हो रही चूज़, तो ये भी गेम से एलिमिनेट हो जाएगी। नाउ वी आर रिड्यूस्ड विद अ 2x2 मैट्रिक्स, A1 A2 B2 B3. दिस इज़ आवर न्यू मैट्रिक्स। And the payoffs are -8, -2, 7 and 3. अब ये रिड्यूस हो गया है 2x2 मैट्रिक्स की साइज़ में, और इसको फर्दर हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे 2x2 गेम को हम सॉल्व करते हैं। आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताना है कि वैल्यू ऑफ गेम क्या निकला है, और स्ट्रैटेजी इसमें x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू, ठीक है। ये भी कैलकुलेट करेंगे, और साथ के साथ एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जिसको सॉल्व करके आप मुझे इन दोनों के सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सएप करेंगे। थैंक यू।